Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about some more important topics from the Constitution of UK, and today's topics include Privy Council and very important, that is Parliament. In Parliament, we will talk about House of Commons, House of Lords, and we will also talk about the Speaker of the House of Commons, and we will also talk about the roles and functions of the House of Commons. And today I will also answer some of the basic questions that some of the beginners students ask the question, like what is Parliament and what is the difference between Parliament and Cabinet, right? Some of the students, they are confused in distinguishing or differentiating between Cabinet and Parliament. Maybe they are also confused in the bicameral system, like the lower house of the Parliament and upper house of the Parliament. Though a few days ago I made it the part of the weekly test, and I assigned you a detailed assignment in which you had to prepare the topics like Parliament, presidential system, bicameral, multi-party system, and bi-party, one-party system, Cabinet. So you might have studied all these things, but some of you are so new and so it means that fresh to the political science, that they are still facing problems in some basic terms like Parliament, Cabinet, Prime Minister, lower house, upper house of the Parliament, right? So in today's class I am going to teach you everything. The basics of political science are the basics of the Constitution, and I will also give you some comprehensive and advanced analysis of the Constitution of UK, which will definitely help you in your examination. So today's class is going to be meaningful and productive in this regard. So let's begin with our first topic, and that is Privy Council. And let me remind you some of the previous lectures that we have so far conducted, and in which we discussed the basics of the Constitution of UK. We talked about its history in the first lecture, and we also talked about the salient features of the Constitution of UK, and then more importantly we discussed the sources of law, conventions, and the difference between law and convention, right, which is the topic of constitutional law, and which has been the topic of the past paper as well. We also talked about the monarchy, like who is monarch, what is monarchy, and what is its function. And we also talked about the king and queen and titular head and real head, and more significantly and importantly we talked about the cabinet. We also talked about the prime minister, the functions and powers of prime minister, right? So these are some of the topics that we have discussed in our previous lectures. So if you have covered my previous lectures, so today's class is going to be ABC for you. It will be A's easy, A's ABC. It will be easy, so easy. Anyhow,
you are going to learn something new in today's class. The first thing that we are going to talk about, that is Privy Council, right? Privy Council. Privy Council, what is Privy Council? What are its functions? Does it have any significance in today's constitution of UK or not? Is it important for the paper or not? So from the paper point of view, it is not so important because it has lost all its functions to the cabinet. Once it used to be the body of advisors to the king, right? And it played a key role, but nowadays it does not have any function, right? It has lost all its functions. All functions of the Privy Council are performed by the cabinet, and cabinet is the most powerful organ in the constitution of UK. You must keep this point in the mind, and while reading it in your book, keep this point in that it has lost all its functions, and all the important functions of the government are performed by the cabinet. So cabinet is more important as compared to the Privy Council. Anyhow, it is very old body. Privy Council, I'm talking about Privy Council. Privy Council is very old body, the body of advisors to the king, right? These people would advise to the king on different issues like tax, like laws, so on and so forth. And it came out of Curia Regis, right, in the Norman period. First, it used to be known as Curia Regis. This was the first name. In Norman period, the king renamed it with the Privy Council. Later on, Privy Council gave birth to the cabinet. As I told you, that the most powerful organ are part of the government. When we talk about its composition, so it has around about 300 members, and they enjoy लाइफ लॉन्ग टेन्यूर. बस पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, लाइफ लॉन्ग टेन्यूर होता है, 300 बंदे होते हैं, और किंग और क्वीन की जो है बदौलत ये लोग प्रीवी काउंसिल में आते हैं. एनी हाउ, जब फंक्शंस की बात आ जाए, सो इट इज़ अ defunct body. Defunct body means that this is the body having no functions, right? All the functions are performed by the cabinet. तमाम के तमाम काम जो है इस वक्त हुकूमत के काम वो कैबिनेट ही करता है. अगरचे ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, अब नहीं है. अब अगर चलो एक साल में एक दफ़ा या 5-6 साल बाद अगर किंग और क्वीन का कोई फंक्शन होता है, कोरोनेशन वगैरह होता है, तो फिर ये लोग उसमें शिरकत कर लेते हैं. अदरवाइज अब इनसे न कोई एडवाइस लेता है और न इसको कोई एडवाइस देता है. तो इस लिहाज से आप इसको सिर्फ एक रीड दे दें, ज़्यादा एनर्जी इस पर सर्फ ना करें. अच्छा, एक और टॉपिक भी है जो पेपर्स के हवाले से इतना अहम नहीं है. सिविल सर्विसेज, जैसे आप लोग ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं, वो भी सिविल सर्विसेज ही है. तो इस टॉपिक को एज एन असाइनमेंट में आप लोगों को देता हूँ, आसान है. तो आप लोग सिर्फ ये पढ़े कि वहाँ के सिविल सर्विसेज क्या हैं, रोल क्या है, ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है. ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है ब्यूरोक्रेसी तो एक अहम जुज़ होता है गवर्नमेंट का, इंग्लैंड का भी है. ठीक है, तो असल फंक्शंस तो कैबिनेट परफॉर्म करता है. कैबिनेट मींस, अच्छा सवाल ये है, अभी आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं और मैं बार बार कैबिनेट लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो डीपंक्ट नहीं, ये स्पेलिंग ठीक नहीं है. इज इट करेक्शन? नहीं, मीना गुलाले, ये स्पेलिंग गलत है. अच्छा, तो कैबिनेट का नाम लेता हूँ और बाद स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि ये कैबिनेट है क्या चीज़. पार्लियामेंट का नाम लेता हूँ और उनको पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट है क्या चीज़. आगे चलकर बताऊँगा भी, लेकिन जनरल बात यह है कि पार्लियामेंट, पाकिस्तानी पार्लियामेंट को ले लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए. पार्लियामेंट पाकिस्तान में ले लें, एक पार्लियामेंट होता है, उसके 2 हाउसेस होते हैं.
एक को हम कहते हैं लोअर हाउस और दूसरे को हम कहते हैं अपर हाउस। ये चीज़ें लिख ले काइंडली, ये फरहान ज़ेब का क्वेश्चन भी है तो वो ज़रूर लिखे ताकि मुझे पता लगे कि अब उसको समझ आ रही है। अच्छा, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं अमूमन, नहीं ज़रूरी नहीं है कि हर पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हो। कुछ पार्लियामेंट ऐसे हैं कि वो यूनिकैमरल है, उसमें 1 हाउस होता है। एनी हाउ वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज जो हम पढ़ेंगे वो बाइकैमरल है, तो इसमें 2 हाउसेस होते हैं। पार्लियामेंट, पाकिस्तानी पार्लियामेंट, फिर उसमें 2 हाउसेस हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं लोअर हाउस, दूसरे को हम कहते हैं अपर हाउस। अब लोअर हाउस को पाकिस्तान में नाम दिया है नेशनल असेंबली। लोअर हाउस को नाम दिया है नेशनल असेंबली, अपर हाउस को नाम दिया है सेनेट। अब ये जो है, अब पार्लियामेंट क्या है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है, अब लोअर हाउस में कौन आता है? नेशनल असेंबली या लोअर हाउस में लोग इलेक्ट होकर आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होती है। पाकिस्तान में हम वोट देते हैं MNAs को, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। हम MNA को जो है वोट देते हैं, वो जाकर फिर पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं और हम उसको पार्लियामेंटेरियन भी कहते हैं, मतलब पार्लियामेंट का हिस्सा हम उसको कहते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जब पार्लियामेंट में चले जाते हैं, फिर ये लोग जो मेजॉरिटी जुमात से होती है, मेजॉरिटी पार्टी से होती है, उस पार्टी से एक शख्स वजीर आजम बन जाता है। अब जैसे वजीर आजम बन जाता है, वो अपने लिए एक टीम तैयार करता है, मिनिस्टीरियल टीम होता है, मिनिस्टीरियल स्टाफ होता है, उसमें मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हो गया, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो गया, रेलवे की मिनिस्ट्री है, वगैरह वगैरह। वो अपने लिए ख़ास बंदे चुन लेते हैं। शेख रशीद ले लिया, फवाद चौधरी ले लिया, ये जो क्या है, शौकत तरीन ले लिया। इन सब को मिलाकर, ठीक है, वो अपने लिए एक टीम तैयार करता है। इस टीम को कैबिनेट कहते हैं। आई होप यू गॉट नाउ द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड कैबिनेट। कैबिनेट के पास ज्यादा इख्तियारात होते हैं। वो मिनिस्ट्रीज जब इनको मिल जाती है, एक मिनिस्टर के बहुत ज्यादा इख्तियारात होते हैं बनिस्बत एक आम MNA के। ये नेशनल असेंबली की, सूबाई असेंबली की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये नेशनल असेंबली की बात हो रही है। तो अब प्राइम मिनिस्टर प्लस हिज मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और उसका जो टीम है, उसको हम कैबिनेट कहते हैं। तो मुझे तो फरहान ज़ेब की कोई कमेंट नजर नहीं आ रही। अच्छा, नीलम अकबर ने कहा कि इट इज क्लियर नो। चलो, जब क्लियर हो गया तो अब आगे चलते हैं। अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके पार्लियामेंट पर। ठीक है, जो हमारे पास पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड है, उसमें भी हमारे पास 2 हाउसेस हैं। ये भी लिखते जाएं, ठीक है, ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स है, लिखते जाएं। उसमें भी 2 हाउसेस हैं। एक को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, ये लिखे जल्दी से, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, ये लोअर हाउस भी कहलाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स ये लोअर हाउस भी कहलाता है। ठीक है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट में लोअर हाउस भी होता है, अपर हाउस भी होता है। जो लोअर हाउस होता है हम उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। जो अपर हाउस को होता है, जिसको पाकिस्तान में सेनेट कहा जाता है, उसी सेनेट को इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अच्छा, एक डिफरेंस और बता दूं, पाकिस्तान में
पार्लियामेंट में कौन कौन तीन आर्गन्स कह ले या तीन पार्ट्स कह ले, उसमें सदर साहब होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, नेशनल असेंबली और सेनेट। इंग्लैंड में तो सदर नहीं होता, वहां पर तो किंग और क्वीन होते ही हैं। तो किंग प्लस लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो ये तीनों मिलकर जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को पार्लियामेंट कहते हैं। इंग्लैंड का पार्लियामेंट तीन चीजों से बनता है, किंग या क्वीन प्लस हाउस ऑफ कॉमन्स, देन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस है। हाउस ऑफ कॉमन्स को पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हम उसको नेशनल असेंबली कहते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो इंग्लैंड में है, हम पाकिस्तान में उसको सेनेट भी कहते हैं। ये बस इक्वल नाम है, ठीक है। नीलम ने मोनार्क, लोअर हाउस, अपर, बिल्कुल यही बात है। ये तीनों हो गए, ठीक है। अब पार्लियामेंट क्या करता है, थोड़ा सा पार्लियामेंट का भी बता दूं, फिर इंडिविजुअली आप लोगों को बता देता हूँ। पार्लियामेंट के फंक्शंस तो इंग्लैंड में बहुत बेतहाशा है। हमने उस दिन सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट पर एक डिटेल बात भी की है कि पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत है दैट इट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टू मेक अ मैन अ वुमेन एंड अ वुमेन अ मैन, कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है सिवाय इसके कि एक मर्द को औरत और एक औरत को मर्द बना दे। बाकी ये कुछ भी कर सकता है। सारी की सारी सॉवरेनिटी, जो कानून ये पास करते हैं कर सकते हैं, जो बिल लाते हैं ला सकते हैं, जिसको रिजेक्ट करते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं। इतना पावर है पार्लियामेंट के पास। कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जैसे अमेरिका में अदलिया की आज़ादी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी है, इंग्लैंड में है ही नहीं। वो एक यूनिटरी सिस्टम है। तमाम के तमाम जो पावर्स हैं वो एक ही मरकज में है, और वो मरकज जो है पार्लियामेंट है। एक सेंटर है और तमाम के तमाम पावर्स उसी सेंटर के पास है। पूरे मुल्क पर कंट्रोल है इसका, और वो है पार्लियामेंट। तो ये तो जनरल चीज़ें हो गई। अब पार्लियामेंट में तो दो हाउस हैं, एक हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन्स है, दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो दोनों के फंक्शंस फिर क्या है, फिर ज़्यादा इख्तियारात जो है किसके पास है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास है। तो वो इख्तियारात जो है वो आज हम पढ़ते हैं। चलो पहले ले लेते हैं दी हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। अच्छा, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये पॉपुलर हाउस भी कहलाता है, क्योंकि वोट से लोग आते हैं, ठीक है। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये लोअर हाउस भी कहलाता है। इसमें जो मेंबर्स आते हैं इंग्लैंड में, इवन पाकिस्तान में भी, ठीक है, पाकिस्तान में हम उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। तो लोग वोट देते हैं एमएनएस को या एमपीस को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, और फिर वो जाकर हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में मेजॉरिटी पार्टी से वजीर आजम आता है, इसी तरह इंग्लैंड में भी हाउस ऑफ कॉमन्स से, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से नहीं, हाउस ऑफ कॉमन्स की जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी से वजीर आजम बनता है, और उसी से कैबिनेट भी बनता है, और उसी से जो है पूरा निज़ाम फिर मुल्क का चलाया जाता है। और अगर डिज़ाल्व भी होता है, हुकूमत भी जाती है और ख़त्म होती है, तो वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स ख़त्म होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो अपर हाउस है, जिसको हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में सेनेट कहते हैं, ठीक है, तो वो ख़त्म नहीं होता हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स ख़त्म होता है। चूंकि कैबिनेट और वजीर आजम सब इससे आते हैं, कानून साजी जब इनिशिएट होती है, ख़ास तौर पर जो मनी बिल्स की बात आ जाए, फाइनेंस और बजट की बात आ जाए, तो वो भी यहाँ से होते हैं। तो इंग्लैंड में दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ज़्यादा पावर्स जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है, क्योंकि ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्ट होकर आते हैं। लोगों को जवाबदेही भी यही लोग होते हैं, ठीक है। इसकी तादाद जो है इंग्लैंड में 650 है, ठीक है। और फिर देखा जाए इसकी
एज के लिहाज से तो जिस शख्स की एज जो है 25 साल हो तो वो इलेक्शन के लिए सूटेबल है, मतलब इलेक्शन लड़ सकता है। और इलेक्शन में वोटिंग की एज जो है कि कौन शख्स वोट दे सकता है, तो जिस शख्स की एज जो है 18 साल हो तो एडल्ट फ्रेंचाइज हैं, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए, जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, आप जाते हैं वोट देते हैं, एक बक्स होता है, आप वहाँ पर उंगली भी लगाते हैं और मोहर भी लगाते हैं जिस पार्टी को भी देना है वोट, ठीक है। यही सिस्टम उधर भी है, तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, हाउस ऑफ कॉमन जो है इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, मतलब इस लोअर हाउस में जो बैठता है और इसको प्रिसाइड करता है, जिसकी सदारत वो करता है, उस शख्स को स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर पर अलग इसी आज के लेक्चर में एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्पीकर जो है इसका फंक्शन क्या है। स्पीकर जैसे पाकिस्तान में आपने असम्बली के सेशंस देखे होंगे, वो हमेशा कहते हैं कि जनाब स्पीकर या मिस्टर स्पीकर या प्रेसिडेंट, जो भी नाम लेते हैं, ठीक है। तो जनाब स्पीकर उसको मुखातिब करके बात की जाती है। उसका काम यह है कि इसका माइक बंद करो, उसका माइक खोल दो, इसको बात करने का मौका दे दो, उसको कहता है कि आप बैठ जाएं। फिर कभी कभार ये कहता है कि गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करे, कभी कभार कहता है कि मैं इसके अल्फाज को हज़फ कर लेता हूँ, कभी कभार कहता है कि आप लोग शोर ना करें, तालियां ना बजाएं, मेज़ें ना बजाएं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो फंक्शन है पूरी असम्बली का डिकोरम, उसूलों का, डिसिप्लिन का ख्याल रखना है। ये आपको कहता है कि इसको इतनी बात करने का मौका है, 10 मिनट आप बात करें, 10 मिनट और बात करें, 10 मिनट और बात करें। इश्यूज जब आज आ जाते हैं तो ये फिर कहता है कि आज का जो इशू है, जो मेन इशू है जिस पर सब ने बात करनी है, वो है तौहीन रिसालत, वो है हमारे मुल्क में पैलेस्टाइन इशू, इस पर बहस होगी, फ्रांस के सफ़ीर को निकालने पर बहस होगी। फिर ये एक इशू उठाता है, लोगों को बताता है, जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे होते हैं और वो उठते हैं और उस पर बात करते हैं। तो ये स्पीकर साहब जो है इंग्लैंड में भी यही फंक्शंस अदा करता है और ये बड़ा अहम है। पाकिस्तानी स्पीकर से किस तरह डिफरेंट है वो ये है कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। इंग्लैंड का जो स्पीकर है उसकी प्रिविलेजेस ज़्यादा है। जब एक दफ़ा स्पीकर बन जाए तो जब तक वो खुद कहता है कि मैं सर्व करना चाहता हूँ तो कर सकता है। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ठीक है। स्पीकर इस फॉर्म से नहीं, सेनेट से नहीं होता, इसी असम्बली से होता है। सेनेट का फिर अलग होता है चेयरमैन साहब। चलो जब सेनेट की बात आ जाए फिर हम उधर उस पर बात कर लेंगे। अभी हम सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स या लोअर हाउस की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो ज़िंदगी है हाउस ऑफ कॉमन्स की, पाकिस्तानी नेशनल असम्बली की, तो वो तो ज़ाहिरी बात है 5 साल के लिए हुकूमत आती है, 5 साल पूरे हो जाए फिर नए इलेक्शन कराए जाते हैं तो उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। और कभी कभार ऐसी बात है कि स्पीकर नहीं, लोअर हाउस को डिज़ाल्व भी किया जा सकता है, मतलब असम्बली को डिज़ाल्व भी किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। और जब जो है वो करे, किंग और क्वीन को कहे, एडवाइस करें कि असम्बली को डिज़ाल्व करें तो कर भी सकते हैं। एनी हाउ ऐसा होता नहीं है, वजह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। अच्छा, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? कानून साजी के इख्तियारात। ये कानून को इट कैन मेक, अमेंड, रिपील बोथ ऑर्डिनरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को बना भी सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट पार्लियामेंट के पास यही इख्तियारात है दैट इट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टू मेक अ मैन वुमेन एंड अ वुमेन अ मैन। तो इसके पास ये इख्तियारात भी हैं। अच्छा, कोई चेक वगैरह इन पर इतना ख़ास नहीं है कि ये किसी से डरे, सिवाय इसके कि अगर पब्लिक ओपिनियन है, कोई इमोरल लॉ पास नहीं कर सकता, जैसे आपको कहें कि जाए बस आप नंगे घूमे संडे के दिन, ऐसी कोई कानून ये लोग पास नहीं कर सकते। ये मोरलिटी के ख़िलाफ़ है। या एक पब्लिक ओपिनियन आपके ख़िलाफ़ हो जाए, जैसे पाकिस्तान में अगर किसी ने ब्लास्फीमी
की लॉ को छेड़ा किसी भी हुकूमत ने, ठीक है, जो तौहीन की जो लॉज हैं इसको छेड़ा, तो फिर उसकी हुकूमत तो ज़ाहिरी बात है ख़तरे में पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन, लोग जो है उसके बारे में गलत राय रखते हैं। तो कोई भी कानून, कोई भी हुकूमत आए, चाहे जितना भी लिबरल और सेकुलर माइंड वाले क्यों ना हो, वो तौहीन के कानून पर बात भी नहीं करते, ठीक है। ये कभी कभार ये मजहबी जुमातें आ जाती है, उसको हाईलाइट कर लेती हैं। एनी हाउ, मजहबी जुमातें जितने भी हैं या मजहबी जुमातें ना भी हो, सब इस पर बात करने से भी पार्लियामेंट में डरते हैं, क्योंकि इसको अगर किसी ने गलत इंटरप्रेट किया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसी तरह पार्लियामेंट जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ पर कोई ऐसा कानून पास नहीं करेगा जो पब्लिक ओपिनियन के ख़िलाफ़ हो, जिससे पब्लिक ओपिनियन हुकूमत के ख़िलाफ़ चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है ख़तरे में पड़ सकती है। तो ये एक चेक है, बाकी इस पर इतना बड़ा कोई चेक नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स के पास जो है बिल्कुल जो मुल्क की पर्स है, पर्स, ख़जाना, पैसा, जो भी आप कह लें, वेल्थ, बस इसी का कंट्रोल है। बजट भी यहीं से पास होता है, मनी बिल्स भी यहाँ से इनिशिएट होते हैं, और उसका काम जो है फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ होता ही नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीने के लिए डिले कर सकता है। बाकी मनी बिल्स जो ये लोग पास कर ले, बस एज इट इज़ पास हो जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास इसके जो है इतने वो इख्तियारात नहीं है। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव जो है वो भी एक पॉइंट है कि ये लोग एग्जीक्यूटिव को ही कंट्रोल करते हैं। एग्जीक्यूटिव से मुराद कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना। तो जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आता है? हाउस ऑफ कॉमन्स से आता है। प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी हाउस से आता है। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स के ही हिस्सा होते हैं। तो और वो लोग जवाबदेह हैं, पार्लियामेंट में आते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन्स को जो है रिस्पॉन्सिबल भी है, अकाउंटेबल भी है, जवाबदेह भी है। तो इस लिहाज से हाउस ऑफ कॉमन्स के इख्तियारात बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए। अदरवाइज रियल में, प्रैक्टिस में देखा जाए तो प्रैक्टिस में जो सबसे ज़्यादा इख्तियारात होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, और उसकी जो काबीना है उसके पास होते हैं रियल में। यहाँ पर किताब में तो लिखा है कि इसके पास एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के इख्तियारात भी हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कैबिनेट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया, हाउस ऑफ कॉमन्स ने बनाया, कैबिनेट बनाया। बट नाउ द कैबिनेट हैज बिकम द मास्टर ऑफ इट्स ओन मास्टर, द मास्टर ऑफ इट्स ओन क्रिएटर। अब कैबिनेट इतना पावरफुल हो चुका है कि जिस बॉडी ने इसको बनाया अब उसका मास्टर बन चुका है, ठीक है। तो अच्छा, एक और फंक्शन भी बता देता हूँ, वो है वेंटिलेशन ऑफ ग्रीवेंसेस। वेंटिलेशन ऑफ ग्रीवेंसेस, वेंटिलेशन का यहाँ पर मतलब है हाईलाइट करना। ग्रीवेंसेस, गम, गुस्सा, ग्रीवेंसेस को आप जो भी ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, ठीक है। मुझे उर्दू ट्रांसलेशन इतना पसंद नहीं है तो इसलिए आता भी नहीं है उर्दू ट्रांसलेशन। एनी हाउ, वेंटिलेशन ऑफ ग्रीवेंसेस जो है कि आप उसको हाईलाइट करें। ग्रीवेंसेस जो है वो होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। जाहिर बात है, आप नेशनल असम्बली पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर जो भी इशू होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट के बंदे भी बैठे होते हैं और अपोजिशन के बंदे भी बैठे होते हैं, और वो एक इशू पर बात करते हैं। और जब भी गम और गुस्से का इजहार हो तो पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असम्बली में ही उस पर बात की जाती है, और उसको कहते हैं कि हम नाराज़ हैं, IMF से कर्जा लिया गया लेकिन पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। अपोजिशन को, या अपोजिशन तो खुद को नहीं कहती, वो कहते हैं कि कौम को एतमाद में नहीं लिया गया, कौम से ये बात क्यों छुपाई जा रही है। तो ये ग्रीवेंसेस जो है, आप गम और गुस्से का इजहार भी जो है पार्लियामेंट में कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ पर सवाल जवाब भी होते हैं, उसको 1 आवर क्वेश्चन आंसर का भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू द UK कॉन्स्टिट्यूशन। 1 घंटा ऐसा है जिसमें एक मेंबर 4 क्वेश्चंस कर सकता है गवर्नमेंट के जो बंदे हैं, खासतौर पर कैबिनेट के मेंबर से, ठीक है, और फिर ये लोग उसका जवाब देते हैं। और इसी तरह जो है जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, या जो हुकूमती जुमात होती है जिसने हुकूमत बनाई होती हैं, वो लोग फिर उसकी सफाई देते हैं अपोजिशन को ख़ास तौर पर। और इसी तरह जो है लोगों को जो है
बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि हाँ हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई, इस वजह से बनाई। तो इसमें अपोजिशन को भी फ़ायदा है अगर वो हुकूमत की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, नुक्स क्या कहते हैं शॉर्ट कमिंग को उर्दू में, तो वो भी हाईलाइट हो जाते हैं। और कभी कभार लोगों को पता ही नहीं होता कि हुकूमत ने एक बिल पास किया, एक कानून पास किया, इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है, क्या वजूहात है, तो उस सवाल जवाब में कौम को वो भी पता चल जाता है। तो पार्लियामेंट में एक जो खूबसूरती है ख़ास तौर पर यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स में, कि वेंटिलेशन ऑफ ग्रीवेंसेस, के इसमें जो भी ग्रीवेंसेस हो उसका इजहार भी उधर होता है। और यही बात है कि पाकिस्तान पर अगर हम इसको अप्लाई करें तो अपोजिशन जमातों ने, पीडीएम ने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो शुरू हुआ 11 पार्टीज अलायंस थी, अभी तो उसमें से कुछ पार्टियां निकल चुकी हैं जैसे पीपल्स पार्टी और एएनपी। एनी हाउ वो कहते थे कि हम जो है हुकूमत को गिराना चाहते हैं, हम रिज़ाइन करेंगे और हम इस्तीफ़े दे देंगे ये वगैरह, ठीक है, और हम हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज करना चाहते हैं। उसमें पीपल्स पार्टी का जो बिलावल भुट्टो है उसने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करके ग्रीवेंसेस जो है जाहिर करेंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर ही जो है लड़ाई करेंगे, इस्तीफ़ा नहीं देंगे, यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ठीक है। तो इस्तीफ़ा देना हल नहीं है। आज आपने इस्तीफ़ा दे दिया, कल आपकी हुकूमत होगी तो आपके खिलाफ इस्तीफ़े दिए जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये उस पीपल्स पार्टी का अपना एक बयानिया है, अच्छा भी है गलत भी है, वो आप लोगों का काम है, सोचे इस पर। एनी हाउ जब आप पेपर में ये बात लिखे ज़रूर लिखें, लेकिन आप इसको डिस्कस करें अंडर द हेडिंग ऑफ पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। किसी खास पार्टी का नाम ना ले, जैसे मैंने बिलावल भुट्टो का नाम लिया, जैसे मैंने पीपल्स पार्टी का नाम लिया, एएनपी का। आप पेपर में ये एक पार्टी का नाम भी ना लिखें, एक लीडर का नाम भी ना लिखें। आप इसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में ले आए, आप इसको पॉलिटिकल मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी के हेडिंग्स में डिस्कस करें कि हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि उसमें पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, लीडरशिप में इमेच्योरिटी क्या है? फिर आप ये एग्जाम्पल ला सकते हैं कि ये लोग कहते हैं कि हम इस्तीफ़े देंगे, ये देंगे, वो देंगे, हालांकि ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। अगर आप कहते हैं कि अपोजिशन के हेडिंग में लाते हैं कि पाकिस्तान में जो है अपोजिशन अपना एक अहम किरदार अदा करती है, ये भी एक खूबसूरती है। पीडीएम बनाया हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए, ठीक है, ताकि हुकूमत जो है अपना रास्ता जो है दुरुस्त कर ले और कोई गलत कानून साजी ना करे वगैरह वगैरह। तो आप इसको दोनों तरह से डिस्कस कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी ऑफ राइटिंग एंड मैच्योरिटी ऑफ माइंड एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। और यही पॉलिटिकल साइंस है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज पर रिलाई करते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि यू नीड टू गेट मैच्योर, ठीक है। थोड़ा सा अब बचकाना सोच से बाहर भी निकलना है, ठीक है। जो आप लोग पढ़ते हैं उसको अप्लाई करें अपने ही मुल्क के पॉलिटिक्स पर, अपने ही मुल्क के लीडर्स पर, और उसको जो है एकेडमिकली डिस्कस करें। एकेडमिकली का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करें। जो बातें आप करते हैं, अगरचे आप अपने ही मुल्क के लीडरों के खिलाफ बात करते हैं, शॉर्टकमिंग्स की बात करते हैं, लेकिन मकसद ये होना चाहिए जिससे आपकी मुहिब वतनी जाहिर हो कि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि हम अपना जो निज़ाम है ठीक करें। किसी एक शख्स के खिलाफ बात ना करें, इमरान खान के खिलाफ बात ना करें, पूरे हुकूमत के जो कंपोजिशन और गवर्नेंस का सिस्टम है उसके खिलाफ बात करे और फिर रिकमेंडेशन दे रहे कि इसको इस तरह ठीक किया जाएगा। ये पेपर के लिए टिप्स भी साथ में दे रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़े से मैच्योर हो जाएं, ठीक है। बुकिश नॉलेज है, ज़रूर है, यही आपको हेल्प करते हैं एप्लीकेशन में। अच्छा, पोजीशन ऑफ द हाउस बयान किया जाए तो ज़ाहिरी बात है, थियोरेटिकली अगर कहा जाए तो दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्गन, ठीक है। और लोअर हाउस जो है वो लेजिस्लेशन भी कर सकती है, कानून साजी भी कर सकती है, कोई भी कानून साजी कर सकती है, ठीक है। लेकिन रियल में हाउस ऑफ कॉमन्स के तमाम इख्तियारात फिर जाते हैं कैबिनेट के पास। कैबिनेट कौन है? प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टीरियल स्टाफ,
ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट कहलाता है। तमाम के तमाम इख्तियारात वो फिर और तकरीबन ये कहा जाता है इंग्लैंड में कि 80% कानून साजी जब होती है तो वो होती है ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट कहता है हाउस ऑफ कॉमन्स को कि हमें ये इशू है, इस पर कानून साजी करें, हमें वो इशू है, इस पर कानून साजी करें। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में भी तकरीबन यही होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर को मसला आता है और वो आइन में ना हो तो वो कहता है कि मैं इसके लिए कानून साजी करूँगा। जैसे अभी पाकिस्तानी मिसाल दे दूँ कि सदारती ये क्या कहते हैं, सेनेट के जब इंतखाबात हो रहे थे तो वो तो सीक्रेट बैलेट था। तो जब वज़ीर आज़म को लगा कि सीक्रेट बैलेट तो ठीक नहीं है, इसमें तो करप्शन है, तो उसने कहा कि ज़रूरत है पाकिस्तान को कि ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन कराया जाए सेनेट का। वो वोट दिखाएगा, जो शख्स कहेगा तो वो वोट दिखाएगा कि मैंने इस शख्स को वोट दिया है, ओपनली वोट देगा। तो इससे वो करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी और साथ में जो शख्स होगा वो अपनी पार्टी से गद्दारी भी नहीं करेगा। ठीक है, तो उसने कहा कि अब इसके लिए कानून साजी करें। अपोजिशन नहीं मानी तो वो सदारती आर्डिनेंस ले आए। आर्डिनेंस फिर अलग चीज़ है, उस पर बात करेंगे, खैर है। लेकिन उसको भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि नहीं, ऐसी बात भी नहीं हो सकती, सीक्रेट है तो बस सीक्रेट रहने दें। और सीक्रेट वोट का फ़ायदा क्या है, वो ये है कि दैट इज़ मोर डेमोक्रेटिक, वो ज़्यादा जो है डेमोक्रेटिक है। अब चाहे मेरा ताल्लुक़ किसी ख़ास पार्टी से है, लेकिन दिल में जो है मैं जब एक सेनेटर को चूज़ करूँगा वो मेरी दिल की मर्ज़ी है, चाहे मैं अपनी पार्टी के मेंबर को वोट दूँ या किसी और को दे दूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। तो ओपन से क्या होगा, नुकसान ये होगा कि जो मेरी मर्ज़ी है, मेरे दिल की आवाज़ है, वो ख़त्म हो जाएगी, और जो पार्टी की आवाज़ है मैंने उस पर वोट देना है। तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो आपको इजाज़त देती है कि आप जिसे चाहे वोट दे दें। ठीक है, तो सीक्रेट बैलेट जो है दैट इज़ मोर डेमोक्रेटिक एंड ओपन बैलेट दैट इज़ नॉट इवन डेमोक्रेटिक। अगर पाकिस्तान में ओपन बैलेट होती हैं, चलो हो जाए, करप्शन के लिए ख़त्म हो जाए, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ पार्टी प्रमोट होगी, डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं होगी, पॉलिटिक्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, एक ख़ास पार्टी को फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। अच्छा, ये सब कुछ कानून जो मैंने बताया ये तो था हाउस ऑफ कॉमन्स के लिहाज से। अब आते हैं, उसको लेते हैं, स्पीकर साहब को लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि स्पीकर साहब के फंक्शंस भी बता दिए। नाउ अब इस टॉपिक पर हमने ज़्यादा टाइम लिया, कुछ हद से ज़्यादा, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। स्पीकर का जो फंक्शन होता है, जैसे ही असम्बली फॉर्म होती है, मतलब बन जाती है, इलेक्शंस होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में लोग आते हैं, तो फर्स्ट सेशन में जो है ये लोग अपने लिए स्पीकर मुंतखब कर लेते हैं। ठीक है, स्पीकर जब एक दफ़ा मुंतखब कर लिया, बस फिर ये स्पीकर बन गया। जैसे कि मैंने कहा, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। एक शख्स जब स्पीकर बन गया तो फिर वो हमेशा के लिए, अगले 5 साल बाद जब नई हुकूमत आती है वो फर्स्ट सेशन में अगेन जो है स्पीकर मुंतखब करती है, लेकिन उसी स्पीकर को मुंतखब किया जाता है जो ऑलरेडी स्पीकर था 5 साल पहले, तो उसी को लिया जाता है यूनानिमसली, अक्सरियत से, और उसके खिलाफ जो है कोई शख्स दूसरा खड़ा नहीं किया जाता। ये एक कन्वेंशन है, एक रिवायत है। और वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि जो इनका स्पीकर होता है वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, और अगर रखता भी है तो जैसे स्पीकर बन जाता है वो तमाम के तमाम चीज़ें छोड़ देता है, इवन अपनी पार्टी की नुमाइंदगी तक छोड़ देता है, नाम छोड़ देता है। टेल हिज डेथ, हाँ डेथ ही ले ले, जब तक वो रेडी है। टेल ही इज़ रेडी टू सर्व, ही इज़ अ स्पीकर। ठीक है, डेथ की बात भी है, लेकिन जब तक उसकी मर्जी है। टेल इज़ रिज़ाइन कह ले। ठीक है, अच्छा, तो अब आते हैं स्पीकर की थोड़ी सी और भी खूबसूरत बातें कर लेते हैं। तो स्पीकर साहब जो हैं वो इम्पार्शियल जज होता है, इम्पार्शियल, कंप्लीट इम्पार्शियल। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि मैं पीटीआई के पार्टी से हूँ और मुझे एज ए स्पीकर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, इवन अमेरिका में भी जो है जब स्पीकर बनता है तो वो अपनी पार्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। ठीक है, अब
ले लें असद कैसर साहब है, तो जब पाकिस्तान में ये लफ्ज़ आया सेलेक्टेड वज़ीर आज़म, सेलेक्टेड वज़ीर आज़म, और हर शख्स फिर सेलेक्टेड बयान करता, तो फिर चूँकि उसकी पार्टी से ही ताल्लुक़ थी, तो फिर उसने इस बात को जो है ख़त्म किया था और कहा कि जनाब इसको ख़त्म किया जाए। इस लफ्ज़ को जो है गैर कानूनी करार दिया इन द पार्लियामेंट में अब कोई शख्स जो है सेलेक्टेड लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेगा फॉर द प्राइम मिनिस्टर। अगर यूज़ किया तो जो है ये गैर कानूनी बात, हाँ बाहर न्यूज़ में या जलसों में हो सकता है लेकिन पार्लियामेंट में नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका में वो पार्शियल हो सकता है, वो पार्टी के लिए बात भी कर सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन इंग्लैंड में वो कम्प्लीटली इम्पार्शियल होता है, उस किसी पार्टी से ताल्लुक़, वो न्यूट्रल रहता है, और साथ में खूबसूरती ये है कि वो प्रेस वगैरह पर भी नहीं आता, कोई उसका अपना बयानिया नहीं होता। सैलरी की बात करें तो तकरीबन 5,000 पाउंड जो है ईयरली लेता है, और अगर रिटायर भी हो जाए या रिज़ाइन दे रहे या चला जाए, अपने घर भी बैठ जाएं, तो 4,000 पाउंड उसको सालाना मिलेंगे। ठीक है, बाकी फंक्शंस तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो हाउस है उसका डेकोरम, उसका ख्याल रखना, रूल्स रेगुलेशन का, किसको कितना टाइम देना है वगैरह वगैरह, और अगर कोई गलत बात इस्तेमाल करता है तो एक MNA जो पाकिस्तान में होता है और वहाँ पर जो MP होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको इवन बाहर भी निकाल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास इख्तियारात थोड़े ज़्यादा है। अच्छा, अब आते हैं एक दो और टॉपिक हैं लेकिन छोटे से हैं, जैसे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड हर मैजेस्टीज़ अपोजिशन। हर मैजेस्टीज़ अपोजिशन, तो अपोजिशन तो ज़ाहिरी बात है छोटा करके 2 मिनट में बताता हूँ, हालांकि यहाँ पर तो पूरे एक पेज लिखा हुआ है। डेलीगेटेड पावर्स का मतलब ये है कि तमाम के तमाम इख्तियारात हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है वो हर एक चीज़ पर कानून साजी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज आपको तो रोज़ाना एक कानून की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या रोज़ाना एक कानून के लिए सेशन होगा और वोटिंग होगी और फिर लोअर हाउस से अपर हाउस और फिर सदर तक और ये बातें चलती रहेगी। तो इन लोगों ने क्या किया, फॉर द सेक ऑफ क्या, लोगों की खातिर के बस जल्दी से कानून साजी भी हो, जो छोटे मोटे जो जब कानून साजी हो तो इसने ये पावर्स कैबिनेट को डिलीगेट किए, मतलब दे दिए। तो इसको हम कहते हैं डिलीगेशन ऑफ पावर्स, के अपने पावर्स दूसरे को दें। अब कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी छोटे मोटे कानून जो होते हैं डिपार्टमेंटल कह लें, तो इवन एक सेक्रेटरी साहब जो होता है, सेक्रेटरी साहब, ये ब्यूरोक्रेसी के आप लोग भी सेक्रेटरीज वगैरह बनेंगे, तो वो भी फिर एक कानून बना सकता है डिपार्टमेंटल। ठीक है, अब टाइम चेंज करना है तो बस सेक्रेटरी जो है साइन कर लेता है कि ऑफिस टाइमिंग जो है 9 से 5 तक होगी। ठीक है, बस होगी, बस बात ख़त्म। तो इसके लिए क्या जो है सेशंस बुलाना ये वगैरह। ठीक, तो इवन एक तो इन पावर्स को जो है डिलीगेटेड पावर्स कहते हैं कि आप अपने ही पावर्स दूसरों को दे रहे, क्योंकि हर एक चीज़ पर कानून साजी करना एक बोझ बन जाते हैं, तो अपने बोझ को थोड़ा सा दूसरों के कंधों पर डाल दिया जाता है, मिनिस्टर्स को दिया जाता है। फिर मिनिस्टर्स भी देखते हैं कि ये तो हम पर भी बोझ है, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स मीन्स ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट ही एक्सपर्ट्स होते हैं। बाकी जो वजीर बनता है तो पेट्रोलियम का वजीर है, वो तो फर्स्ट टाइम उसने पेट्रोल का नाम भी सुना होता है, बस बन जाता है वजीर। फर्स्ट टाइम एक शख्स स्पीकर बन जाता है और फर्स्ट टाइम एक शख्स रेलवे का वजीर बन जाते हैं, उसे तो रेलवे की स्पेलिंग भी नहीं आती लेकिन बन जाता है। अब उसके पीछे जो सेक्रेटरीज हजरात होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वही सब कुछ संभालते हैं, तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं और वही फिर वो कानून साजी और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। जो डिलीगेटेड पावर्स हैं वो ही इस्तेमाल करते हैं। व्हाई इज दिस सो, क्या मतलब व्हाई इज दिस सो? अच्छा, मुझे अपोजिशन का रोल तो जाहिर बात है, अपोजिशन क्या है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, फाशिज्म और नाजिज्म से डेमोक्रेसी किस तरह अलग है, दैट इज बिकॉज ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन की वजह से, क्योंकि वहां पर अपोजिशन होती ही नहीं है, वन पार्टी सिस्टम होता है। डिक्टेटरशिप में अपोजिशन होता ही नहीं है। तो अपोजिशन जो है दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं उनको अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है, ठीक है,
दूसरी बात यह है, अपोजिशन जो है ये एक चेक होता है हुकूमत के कामों पर। ये हुकूमत के जो भी नुमाइंदे होते हैं या जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उससे सवाल जवाब भी करती है और उसकी इफ़िशेंसी में इजाफा भी करती हैं, क्योंकि वो जो भी काम करेंगे उसको पता है कि एक शख्स जो अपोजिशन लीडर है वो उसको क्रिटिसाइज़ करेगा या जो अपोजिशन पार्टी से लोग हैं वो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो वो मुख्तात कदम उठाते हैं। तो इस वजह से जो है स्ट्रांग अपोजिशन हो तो क्या ही कहने। पाकिस्तान में देख ले, इस वक्त देख ले तो अपोजिशन थोड़ी वीक है। एनी हाउ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, फिर भी है, ना होने से तो बेहतर है कि वीक है लेकिन है। तो अपोजिशन जो है हुकूमत को टफ टाइम देती है, उसके कामों को क्रिटिसाइज़ भी करती है, ठीक है, साथ में उससे क्वेश्चंस भी करती है उनके पॉलिसीज़ के ऊपर भी, और अगर वो सुस्ती इख्तियार करते हैं तो उसकी सुस्ती को भी हाईलाइट करती हैं कि हुकूमत ने यहाँ पर सुस्ती दिखाई, वहाँ पर सुस्ती दिखाई, इवन उनके पॉलिसीज़ को चैलेंज भी करती हैं। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि 9 बजे शायद आप लोगों का कोई और क्लास हो। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है फिर हम ये कल जो है कर लेंगे। अभी 5-6 मिनट हैं 9 तक, तो कोई क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। अच्छा, व्हाई इज दिस? एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड शुड बिकम मिनिस्टर्स ऑफ द फील्ड। अच्छा, अगर वो मिनिस्टर्स बन जाए नहीं, वो तो फिर डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हो जाता है ना। डेमोक्रेसी तो यही कहती है कि आप वोटिंग जिस शख्स को अवाम ने मुंतखब किया उसी को जो है हक है कि वो जो है वो पॉलिसी अपनाए। अब मैं आपको थोड़ा सा हुकूमत, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा फ़र्क भी बता देता हूँ, तब आपका आंसर भी, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और आपको आंसर भी मिल जाएगा। पॉलिटिशियंस जो है एक सोच लाते हैं, एक आइडिया लाते हैं। जैसे एक पॉलिटिशियन ऐसे कि मैं जो है रोटी कपड़ा मकान दूंगा, ये अभी इसकी एक सोच है। बड़ा जो पिक्चर होता है, एक ग्लोबल आइडिया मुल्क के लिए जो लाता है वो पॉलिटिशियन लाता है, उसकी बड़ी सोच होती है। एक आता है वो कहता है कि मैं चेंज लाऊंगा, दूसरा आता है वो कहता है कि मैं तरक्की लाऊंगा, चेंज लाऊंगा, दूसरा कहता है मैं तरक्की लाऊंगा, तीसरा कहता है कि मैं जो है मजदूरों को फ़ायदा दूंगा, वगैरह वगैरह। अब जैसे ये शख्स आता है, अब इसने कह दिया है कि मैं करप्शन ख़त्म करूंगा। अब करप्शन ख़त्म करना ये तो इसकी अपनी मेंटेलिटी है, अपनी आइडियाज़ हैं जो पूरे पाकिस्तान पर इसने लागू कर दिया। अब ख़त्म करप्शन क्या है, ख़त्म किस तरह होता है, प्लानिंग किस तरह करनी है, अब ये फिर पॉलिटिशियन का काम नहीं है, फिर ये ब्यूरोक्रेट का काम है, फिर ये जो है एक्सपर्ट्स का काम है, ये क्रिटिक्स का काम है, ये स्ट्रेटेजिस्ट का काम है, ये जो इसके लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं ये उसका काम है। उसको बिठाया जाएगा, उसके साथ मीटिंग होगी और जिस शख्स ने या जिस पॉलिटिशियन ने आइडिया देना है कि मैंने करप्शन ख़त्म करनी है, फिर वो कहता है कि आप मुझे बताएं कि किस तरह हम करप्शन ख़त्म करेंगे, आप लोग मुझे पॉलिसी ला कर दे रहे और फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आपकी बात तो ये तो सही है, लेकिन ये फिर डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। डेमोक्रेसी ये है कि अब एक शख्स है, उसकी तो अपनी सोच है। जैसे मैंने कहा एक वज़ीर है, एजुकेशन का वज़ीर है, उसके अपने आइडियाज़ हैं कि मैंने एजुकेशन को चेंज करना है, बेहतर करना है। कोई पागल तो नहीं है, ठीक है, इंसान ही है, मैच्योर है, पॉलिटिशियन है और लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया है, तो अब उसका हक है कि वो मिनिस्ट्री पर बैठ जाए। अब जब बैठ गया, अब ब्यूरोक्रेट्स का काम है, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन का, और जो एजुकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उसका काम है कि उसके साथ बैठे, उसको गाइड करे, उसको पॉसिबिलिटीज़ बनाए, उसको कन्विंस करें और नए पॉलिसीज़ ले आए, और उसको जो फिर इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो फिर मिनिस्टर का काम होता है। तो इस लिहाज से मीना गुलाले, मैं ये नहीं सोचता कि एक्सपर्ट्स ही हो तो बेहतर है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, एक डॉक्टर ही मिनिस्टर बन जाए तो बन जाए, इसमें कोई कबाहत तो नहीं है, लेकिन
अगर एक आम इंसान भी बन जाते हैं लेकिन विजनरी है, उसके पास विजन है, तो फिर बाकी एक्सपर्ट डॉक्टर उसको गाइड कर ले, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। सर इज अ पोजीशन अ पार्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्टी और यस, ये स्पेसिफिक पार्टी होती है ना। जैसे आप पाकिस्तान में अपोजिशन किसके पास है? पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है, नून लीग अपोजिशन में है, फजलुर रहमान की जो पार्टी है JUIF जो जमीयत उलमाए इस्लाम है, ये है जुमात इस्लामी, ये सारे के सारे जो है अपोजिशन में है। तो ये पार्टी का जो है मजमुआ बन जाता है, ठीक है। तो वो अपोजिशन में बैठ जाते हैं। जो PTI है और उसके इत्तेहादी है वो फिर जो है हुकूमत बना लेते हैं और उसको गवर्नमेंट कहा जाता है। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान में भी नहीं और उधर भी नहीं, ठीक है। आप इंटर्नशिप इसकी नहीं होती, आप CSS करें, बस ये आपकी इंटर्नशिप है, ठीक है। और आप खुद ब खुद जो है वक्त के साथ साथ जो है एक्सपीरियंस हासिल करके सेक्रेटरी बन जाएंगे। आई वांट टू बी एन एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। आप CSS कर लें, एक्सपीरियंस हासिल कर लें, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हासिल कर लें। बाकी जो आपकी जितनी भी ज़िंदगी है, 30 साल है, 40 साल, अगर एज 90 ईयर्स हैं आपकी, तो फिर ये 30 साल पॉलिटिक्स को दे दे और मिनिस्टर्स बन जाए, एजुकेशन का बन जाए, ठीक है। अगर बनना है तो इस वक्त फोकस ऑन योर CSS। अच्छा, नीलम अकबर, मोस्टली दे आर एडवर्टाइज्ड थ्रू प्रोविंशियल टेस्टिंग बॉडी, वो उसका मुझे पता नहीं है कि वो कौन से सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, वो फिर कोई और पोस्ट होगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो इट्स इनफ। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर सेल्व्स। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो टॉपिक हैं वो खैर हम कल कर लेंगे। थैंक यू।